آج بھی عقل انسانی پہ نقش ہے۔ آج سے ٹھیک 1400 سال پہلے 19 رمضان کی صبح امیر نے بول کے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ جو جوان بیٹھو میرا ساتھ دینا، علی کی نظر اپنے پیچھے کھڑے قاتل پہ نہیں تھی، علی کی نظر قیامت تک کے لیے اپنے ہر ایک منکر کے چہرے پہ تھی۔ علی نے مصلی پہ سر رکھ کے کہا فزت برب الکعبہ۔ علی کے خطبے کی دھار میں اثر اتنا تھا، قاتل سے تلوار چھوٹ گئی۔ قاتل سوچ میں پڑ گیا کہ میں قتل کر کے بھی ناکام ہو گیا، علی سجدہ کر کے بھی کامیاب۔ آواز جہاں پہلے تھی وہاں رہنے دینا، مزید بہتر کرنا کم نہ کرنا۔ امیر المومنین نے سر سجدے میں رکھا، قاتل پریشان ہو گیا، قاتل ناکام ہو گیا، امیر کامیاب ہو گیا، علی کامیاب ہو گئے، قاتل ناکام ہو گیا، ذہنوں کی زمین بن گئی۔ پہلا فضائل کا جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ قاتل کی خواہش تھی کہ علی پہ مصلی پہ وار کروں تاکہ علی عبادت سے نکل جائے۔ مجھے اس کے بعد اندازہ کرنا ہے کہ مجھے کیسا پڑھنا ہے۔ آواز وہاں نہیں جہاں پہلے تھی، مجھے یہاں سے اندازہ کرنا ہے کہ مجھے کیا پڑھنا ہے۔ قاتل کی خواہش تھی میں علی پہ وار کروں گا، مصلی پہ آ کے علی عبادت سے نکل جائے گا، پھر آج کے بعد کوئی بھی مصلی پہ آئے گا وہ ڈر کے علی کو چھوڑے گا، میں مصلی کو علی سے خالی کر دوں گا۔ اس بہادر کو علی کہتے ہیں، مصلی کے پشت پہ آ کے علی کھڑا ہوا۔ قاتل کی خواہش تھی کہ علی کو عبادت سے نکالے، علی نے سر سجدے میں رکھا، چپ، علی نمازی کا نام نہیں، علی نماز کا نام۔ حسین عزت، آواز ٹھیک نہیں ہے میرا جان، جہاں پہلے تھی وہاں کرو۔ جہاں بالکل پہلے آواز تھی وہاں کرو، مہربانی کرو۔ علی کا نام جب تشہد میں لیتا ہوں، بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تشہد میں لیتا ہوں، جلدی کرنا عبادت نماز کرتی ہے۔ ولی درخت کے عداوت جو چکے کبریا کو، اسی وجود پر لعنت کرو۔ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، مالک جملہ سلامت رکھے، عقیدہ سلامت رکھے۔ جو بات بھائی نے کہی وہی بات میں آنے لگا تھا۔ چلیں ایک لمحے کے لیے اور آگے چلتے ہیں۔ قاتل کی خواہش تھی علی کو عبادت سے نکالوں، علی کو مصلی سے نکالوں۔ علی مصلی کی پشت پہ سوار رہا، علی نے ایک لمحے کے لیے بھی مصلی کی زین کو خالی نہ ہونے دیا۔ علی نے سر سجدے میں رکھا، علی کا سر سجدے میں تھا، علی کی پیشانی کو مصلی نے چوما۔ مصلی نے چوم کے کہا یا علی تیری عزت کی قسم ہے، تو نے 19 رمضان کی صبح میری لاد رکھی ہے، تو نے مصلی کی پشت کو خالی نہیں ہونے دیا۔ یا علی تو نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا، میں تیرے قدموں کو سجدہ کر کے نماز وعدہ کرتی ہے، میں قیامت تک وہ نمازی قبول ہی نہیں کروں گی جس میں علی نہیں۔ سارے بولو، آخر تک بولو، ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ نمازی، نمازی چہرے، علی والے چہرے۔ مصلی نے علی کی پیشانی چومی، مصلی نے کہا تیری ولایت کی قسم ہے مجھے وہ نمازی چاہیے ہی نہیں، میں مصلی پہ اسے آنے ہی نہیں دوں گی۔ یا علی تو نے مصلی تنہا نہیں چھوڑا، یا علی تو نے نماز کی قدر بڑھا دی، یا علی تو نے نماز کا قد اونچا کر دیا، یا علی تو نے نماز کی لاج رکھ لی ہے۔ 19 رمضان کو مجھے بھی تیرے لہو کی قسم ہے، اگر کوئی پھولا بھٹکا نمازی تجھے پھونک کے تجھے چھوڑ کے میرے مصلی پہ آ بھی گیا، یا علی تیری قدموں کی گرد کی قسم ہے اترنے سے پہلے لعنت نہ دو مجھے نماز۔ میں مصلی پہ لعنت نہ کروں، میں مصلی پہ اٹھنے سے پہلے لعنت نہ کروں۔ 19 رمضان کی صبح بات حسین سے ایکو بناؤ، بیس اور ایکو کرو۔ چلی تلوار فتح علی، کل ایمان کل قرآن علی ولی اللہ، جو جو نعرہ لگائے گا من کی مراد پائے گا، پانچ پانچ نعرہ 1.25 لاکھ نعرہ یا میں مصلی پہ اترنے سے پہلے سحری کے وقت بولنے والے
अली वली अल्लाह पे हाथ उठाने वाले बादशाह इन हाथों को हमेशा अपनी विलायत के लिए सर बुलंद रखे। मुसल्ले पे नमाज बोल पड़ी, मुसल्ले पे नमाज ने बोल के कहा या अली तेरी विलायत की कसम है मुझे वो नमाजी चाहिए ही नहीं जो तुझे भौंके, तुझे सोच के, तुझ पे शक करके मेरी पुष्ट पे आएगा। मैं लानत के बगैर वापस नहीं जाने दूंगी। अभी मुसल्ला वादा कर रहा था, या कुरान ने सर उठाया, कुरान ने कहा या अली तेरे लहजे की कसम है मुझे कोई ऐसा कारी उठाए जिसके दिल में तेरी दुश्मनी होगी, या अली तेरी विलायत की कसम है मैं ना कुरान कबूल करूंगा ना सलाम कबूल। अब इबादत में अली के बगैर नमाज भी हट गई, कुरान भी आ गया। रमजान का महीना है, बंदों के पास अल्लाह मनाने के दो ही हथियार है, या नमाज या कुरान। बंदों के पास तीसरा हथियार है ही कोई नहीं। बंदे या नमाज पे नमाज या सजदे पे सजदा, अल्लाह राजी करने के लिए हाथों पे कुरान है। बंदे रमजान के महीने में दो हथियार लेके मैदान में आते हैं, या कुरान लेके आते हैं या नमाज लेके आते हैं। 19 रमजान को नमाज ने भी वादा कर लिया, 19 रमजान को कुरान ने भी वादा कर लिया। अब नमाज और कुरान दोनों का वादा है, हम अली की विलायत के बगैर ना सजदा कबूल करेंगे ना तलावत कबूल करेंगे। वादा है नमाज का, वादा है कुरान। अली को छोड़ के मुसल्ले पे आओ, नमाज कबूल नहीं करती। एक लम्हा बड़ी जल्दी है, ताबूत की बरामदी है माजरत। अली को छोड़ के मुसल्ले पे आओ, मुसल्ला कबूल नहीं करता। अली को भौंक के कुरान उठाओ, पारा कबूल नहीं करता। अली को छोड़ के हज पे जाओ, काबा कबूल नहीं करता। छोड़ के रोजा रखो, अफ्तार के वक्त रिस्क भी लानत करता है। क्या फायदा तेरे भूखे रहने का, तकसीम करने वाले को छोड़ दिया। इबादतों के मरकज को अली कहते हैं। कुरान भी अली के बगैर कुछ नहीं। एक आरफ आलम दीन का जुमला है, मुझे अपने लहू से ज्यादा प्यार है उस जुमले से। बादशाह हुसैन इज्जत, रोजा बगैर अली के रखो, अफ्तार के वक्त रिस्क भी लानत करता है। रिस्क कबूल ही अली की विलायत से और अली के दुश्मन पे लानत की वजह से होता है। एक आरफ आलम दीन का जुमला, उसका कुरान अगर कारी के हाथों पे आए ना तो कुरान हाथों पे आके कारी का चेहरा देखता है। जितनी मार्फत होती है उतने मानी उगलता है। लाहौर है, पूरे मुल्क का चुनीदा मजमा है। अदल का तराजू हाथ में रखना, मुझे वो बंदा देखना है जिसने जुमले के साथ खयानत की है। जितने विलायत अली के पहरा देने वाले नमाजी मातमी चेहरे मेरे सामने बैठे हो। उस्ताद मुनीर नियाजी का जुमला मुझे जिंदगी से ज्यादा प्यारा है। उस्ताद मुनीर नियाजी कहता, कुरान की आयतें इतनी हसीन है ये बेजमीर चेहरों से पर्दा करती है। इतनी खूबसूरत है अल्लाह के कुरान की आयतें। बेज़मीर हाथों पे कुरान आए, आयतें अपने ही अंदर छुप जाती हैं। कुरान भी अली के नूर के बगैर नजर नहीं आएगा। मुसल्ला भी विलायत अली के बगैर कबूल नहीं करेगा। रोजा भी कबूल नहीं करता, हज भी कबूल नहीं करता। तू अली को छोड़ के करना क्या चाहता है? बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, बारहवीं की कचहरी में बगैर दलील के, मालिक के इज़्न के बगैर गुफ्तगू हो तो मौला की जुबान छीन ले। अली और वलीउल्लाह के बगैर बंदा मुसल्ले पे आए, मुसल्ला लानत करके वापस उतारता है। मेरा 21 की सुबह को मुफ्त मशवरा है अली और वलीउल्लाह के दुश्मन को, अगर अली से दुश्मनी करनी है नमाजें कम पढ़ना, जितनी कम पड़ेगा उतनी लानत में कमी होगी।
इबादतों में रूह लानी है तो अली लेके आ। इबादतें बगैर अली के समझ में नहीं आती, कुरान बगैर अली के समझ में नहीं आता। कुरान नूर है लेकिन अली के साथ, कुरान रोशनी देता है लेकिन अली के साथ। बंदों ने अली को छोड़ के कुरान पढ़ने की कोशिश की। सफीन के मैदान था, अली के नौकर थे। अली ने सामने दुश्मन का मजमा देखा, अली ने अपने नौकरों में से एक नौकर को ढूंढा, नाम उसका माल के अश्तर है। बड़ा ही बहादुर था, बड़ा ही जर्री था। लाहौर वालों, मैं तुझे उसकी बहादुरी का क्या किस्सा बताऊं। माल के अश्तर अली का इतना बहादुर नौकर था कि अली के होते हुए अली के लश्कर का कमांडर था। अली जो खड़े हो हाथ उठाओ ना, हक अदा करो ना अली को मारने का। इतना चर्री था ये अली का नौकर, अली के होते हुए कमांडर। खुद अली जैसा शुजा जिसे शुजा कहे, खुद अली जिसे बहादुर कहे, अली जिसकी जंग को देखने के लिए टीले पे खड़े होते थे। दराज कद था अली के नौकर, इतना दराज कद था कि घोड़े की सींग पे बैठते थे तो पांव का तलवा जमीन चूमती थी। 1000 का लश्कर भी मालिक के सामने रुकता नहीं था। सफीन में का मालिक उठ हमला करके, सामने 1.5 लाख, अकेला मालिक चला। 1.5 लाख के सामने अहमद भाई अकेला मालिक चला। मालिक घोड़े की सींग, घोड़े के कदम चले। मालिक 1.5 लाख ने मालिक को आते देखा, तलवारें नियामों में रखी, घोड़े खैमों की तरफ वापस किए। खैमों में हाथ, जल्दी जल्दी कुरान उठाए, कुरान पढ़ना शुरू किया। नजरे मालिक पे, हाथ कुरान पे, आए आए, नजरे मालिक पे, हाथ कुरान पे, नजरे मालिक पे, हाथ कुरान पे। मालिक ने यूं कुरान पढ़ते देखा, अली के चेहरे के, नौकर के चेहरे के तेवर बदले। मालिक के अश्तर ने अपने घोड़े को वापस किया। मालिक का घोड़ा अली के खैमे के पुष्ट के पीछे से गुजरा। अली ने मुसल्ले पे बैठ के कहा, मालिक भेजा था हमला करने, वापस खाली क्यों आया? मालिक ने कहा, मौला हमला करने गया था, वो कुरान पढ़ रहे थे, उनके हाथों में कुरान था, मैं गर्दने काटता कुरान गिर जाता, मैं हाथ काटता कुरान गिर जाता। या अली कुरान के एहतराम में वापस आ गया हूं, ये तलावत बंद करेंगे, मैं हमला कर दूंगा। अली ने दीवार से तलवार को खींचा, अली घोड़े की सीन पे आए, अली ने सुल्फ़कार को हवा में लहराया, अली का घोड़ा हवा के दोष पे चला। मालिक के असर ने कहा, मौला कहां जा रहे? फरमाया इन पे हमला करने। उसने कहा, मौला वो कुरान पढ़ रहे हैं। फरमाया कुरान इनके हलकों में अटका हुआ है, कुरान इनकी गर्दनों में फंसा हुआ है। उसने कहा, मौला ऐसे कारी भी होते हैं जो कुरान पढ़े और कुरान हलक में रुक जाए। फरमाया, तूने नबी की हदीस नहीं सुनी? कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। क़यामत तक जब भी कोई कारी कुरान पढ़ेगा, कुरान हलक में रुक के देखेगा, अगर दिल में अली हुआ तो उधर जाएगा, वरना हलक में फंस। सारे अली वलील्लाह पढ़ने वाले इंशाल्लाह 6 जुलाई कसरे बतूल में विलायत अमीरुल मोमिनीन के सिलसिले में कौमी कन्वेंशन का इनकार पीर मुर्शिद सरदार सैयद अबू ज़र बुखारी साहब, उनके दोस्त रुफ़का मीरे कारवां की हैसियत से सारा दिन होगा, सुबह से लेके शाम तक, 10 बजे लेके शाम 5 बजे तक। 27 जुलाई इसी इमाम बारगाह में 8वें बादशाह के शबीए तबूत को 6 जुलाई कन्वेंशन, 27 जुलाई को मजलिस सईदा सलाम, 22 जून भी के बाद मलक जवार साहब सफेदा बिछाएंगे, वहां आपके सामने हाजिरी होगी। अली के बगैर मुसल्ले पे आओ, मुसल्ला नमाजी कबूल नहीं करता। अली के बगैर कुरान उठाओ, कुरान कारी कबूल नहीं करता। अली के बगैर हज करो, काबा हाजी कबूल नहीं करता। अली के बगैर कलमा पढ़े, मोहम्मद सहाबी कबूल नहीं करता। अली, वाह या अली, वाह या अली, ये है मेरी शिया कौम का म्यार, ये है इनका अली से मोहब्बत का तरीका। अली के बगैर कुछ नहीं।
دنیا چاہتی ہے کہ علی کو چھوڑ کے ہم دنیا داری رکھیں، ہم تعلقات رکھیں. علی کے بغیر دنیا بڑے اچھے طریقے سے مل جاتی ہے، بڑے اچھے تعلقات ملیں گے، بڑا اچھا رہن سہن ملے گا. علی کو چھوڑ دنیا سج سج کے سور کے تیرے سامنے آئے گی. علی کو چھوڑے گا دنیا میں جو چاہتا رہے گا، دنیا بدل بدل کے تجھے ملتی رہے گی. آج بندے کہتے ہیں ہم کیا کریں، دور بڑا مشکل ہے، مٹھی بھر لوگ ہیں، ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، بندے سلام دعا نہیں رکھتے، دفتر گھر کاروبار رشتہ داروں میں تعلقات خراب ہو جائے، لوگ ہمیں سوشل میڈیا پہ گالیاں دے رہے ہیں، ہم علی ولی اللہ کیسے پڑھیں؟ بڑا مشکل نہیں ہے جی علی ولی اللہ پڑھنا. یہ پورے لاہور کے سامنے امام حسین کے ماتمی کے جوتے کو جھاڑا جائے، جو ذرہ گرتا ہے اس ذرے کا قد مجھ سے بڑا ہے. اپنی حیثیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے قوم کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، اتنا مشکل مرحلہ ہے علی ولی اللہ. علی ولی اللہ کے پیچھے دشمنی میں لوگوں نے محمد کا جنازہ چھوڑ دیا تھا. اب علی ولی اللہ سوچ کے پڑھنا، اب ذہن میں فیصلہ کر کے پڑھنا. گھر دینا پڑتا ہے علی کے لیے، جوانی لٹانی پڑتی ہے علی کے لیے، سولی لینی پڑتی ہے علی کے لیے، دار پہ جانا پڑتا ہے علی کے لیے، جوان بیٹے کے جنازے دیکھنے پڑتے ہیں علی کے لیے، گھر جلوانے پڑتے ہیں علی کے لیے. سب کچھ دے دینا میری قوم کے جوانوں، تمہیں علی کی ضربت کا واسطہ کبھی علی نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ پہلا مظلوم ہے. اس کی ولایت کی دشمنی میں لوگوں نے علی کے بدلے علی کی بیٹیوں سے لیے. بازاروں میں چلی گئی، جنگلوں میں چلی گئی، آسانی سے ولایت بچی، آسانی سے نہیں بچی. بس بڑا مختصر وقت رہ گیا، چند لمحوں کا مہمان زینب کا پاپا. فضائل میں نے مختصر پڑھ دیے تاکہ مسائل میں کنجوسی نہ ہو، کیونکہ یہ داد کی رات ہی نہیں، یہ خطابت منوانے کی رات نہیں، جنازے کی برآمدگی ہے. صرف آپ ہی نہیں آئے، جنازے کی وارث بھی آئی ہے. شام والی ہو سکتا ہے دیر سے آئی ہو، لاہور والی تو صبح سے بیٹھی ہے. اس نے بابے کے جنازے پہ سر کے بال کھولے ہوئے ہیں، وہ رو رو کے کہہ رہی ہے اٹھاؤ ماتمیوں میرے بابے کا جنازہ، اوے دو حسین کے ماتمیوں میرے بابے کا پرسہ. یہ ہے علی کی ولایت کی نعمت. لوگوں کی بیٹیاں سحریوں میں مصروف، میری قوم کی بیٹیاں مٹیوں میں علی کی عزاداری میں مصروف. کوئی جلدی نہ کرنا، کوئی بندہ اتنی جلدی بھوک سے نہیں مرتا. آج سحری کے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ملے تو گزارا کر لینا. آج کی پوری رات زینب سوئی نہیں ہے، ایک ایک بھائی کا دامن ہلا کے کہتی بتا پاپا بچ جائے گا، اوے غازی بتا میرے بابے کا زخم کتنا گہرا ہے، اوے حسن بتا میرا بابا آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا. لاہور میں 3-4 جگہوں میں حاضری ہوئی، سب سے عظیم اجتماع ہے شہزادی کے گھر پہ. بی بی کے گھر میں مالک کا پرسہ دینے آئے، یہ میرے بڑے ذاکر بن کے نہیں، خادم بن کے. تم میں سے اگر کوئی بہن سے ناراض ہو، بہن سے سلو کر لینا. تمہیں علی کے جنازے کا واسطہ. بہنوں کی ناراضگیاں وقتی ہوتی ہیں، انہیں بے کے گھروں پہ بڑے مان ہوتے ہیں. عید غریب ہونا، ریڑی لگانے والا بھائی بھی بہن کو عید دینے جائے گا. بہن عید بھائی کے پاس دے کے کہتی ہے مجھے چیزوں کی ضرورت نہیں، تو چل کے میرے گھر آ گیا، میری عید اسی پہ ہو گئی ہے. میں اپنے گھر میں کہوں گی میرا بھائی مجھے ملنے آیا تھا، بس کچھ دیا نہ کر مجھے چہرہ دکھا جایا کر.
मैं तेरा चेहरा देखती हूँ मेरी ईद हो जाती है। ये पढ़ दिया मैंने जुमला, अब तुमने करना है मातम। बाबे के बाद ज़ैनब को कूफे में पहली ईद आई। हसन ने सर पे अली वाला अमामा रखा, हसन ने भाइयों को साथ लिया, हसन आए ज़ैनब की हवेली में, रो के कहते ज़ैनब मैं तुझे ईद देने आया हूँ, तेरी बाबे के बाद पहली ईद है। ज़ैनब तू मेरी पर्दादार बहन है, ज़ैनब तू मुझसे कुछ मांग मैं तुझे दूं। मर्द चुप हो जाए, मेरी बेटियां मातम जरूर करना। ज़ैनब मुसल्ले से उठी, रो कदी तेरी जवानी की कसम है मैंने जिंदगी में बाबे से भी कभी ईद नहीं मांगी। हसन रो कदे फिर मेरी हसरत है, तू मुझसे कुछ मांगे मैं तुझे दूं। रो कदी मैं जो मांगू वो दे देगा। हसन रो कदे तू जो मांगेगी मैं दूंगा। हसन ने हाथ हुसैन के सर पे रखा, रोका मैं शबीर जामन देता हूँ, तू जो मांगेगी मैं दूंगा। रोकर फिर मेरी मिन्नत है, एक बार गाजी से कह मेरे बाबे अली के कपड़े पहन के मेरे घर में मुझे चल के दिखाए, मैं गाजी को चलता देखो, मुझे मेरा बाबा याद आए और मेरा अब्बास चलता है और बाबे जैसा लगता है। सब में आता जैसे अली के उठाने का दौर। एक बार गाजी से कह हाँ बीबी तेरी चीखे कबूल करे, आ देख मेरी लाहौर वाली मलका, और तुझे कूफे में कोई पुरसा देने नहीं आया था, आ देख हम तुझे पुरसा देने आए। ये मेरी मिन्नत है। अगर तुम्हारे करीब किसी बंदे को नींद में हो तो थोड़ी देर के लिए जगा, नहीं रोना आता है ना, मैं अपनी मजलिस बनाने के लिए कहूं मेरा मालिक मेरा शुमार हुसैन के कातलों में करे। बड़ी दाद ले ली मैंने इस कौम से, ये हुसैन का वास्ता, रोना ना भी आए ना, हाय हाय कहता रहे। आज चीखे मार, आज रात ज़ैनब को चुप करवाने वाला बाबे की सूरत में कोई नहीं था। भाइयों से पर्दा करती थी, कभी दीवार के पीछे छुप के रोती, कभी दरवाजे के पीछे छुप के रोती, रो के कहती अम्मा ज़हरा मुझे भाइयों से बड़ी शर्म आती। यदि 5 मिनट और पढ़ना मैंने, घड़ी देख लो 5 मिनट पढ़ूंगा। मुझे नजर आ रहा है मेरे मालिक का जनाजा, जनाजे को मैं देर नहीं करवाऊंगा, तुम मातम कर सको, ये तुम्हारी इबादत है। मैं अपने हिस्से की इबादत करने लगा हूं पूरी। मातमियों को है मातम की दावत, शहादत अब पूरी पढ़ी नहीं जा सकती, अज़ादारी भी है, जंजीर जनी भी है। ये मिंबर के गिलाफ में मेरा हाथ, ये बादशाह की कचहरी जामन। मुद्दत पहले पाकिस्तान से बाहर मैंने एक रवायत में पढ़ी थी, मातमियों ने मुझे कहा कि अब रवायत ना पढ़ना, छोड़ दी मैंने। उसके बाद आज पहली बार धर्मपुरा बरामदगी थी, वहां मैंने सिर्फ ये रवायत पढ़ी है, उसके बाद शहादत नहीं पढ़ी। बादशाह का जनाजा मातमी लेके आ गए, वो रवायत पढ़ूंगा, मैं मिंबर छोड़ूंगा। मातम की तैयारी करना, जहां जहां कोई ज़हरा की औलाद से गिर बैठा है, वो चंद मिनटों के लिए मुझे कनीज का बेटा समझ के माफ कर दे, थोड़ी देर के लिए अपने कलेजे को संभाले। मैं पढ़ने लगा हूं तुम्हारे घर का दुख। 18 रमजान जिसने अफ्तार किया है अपनी बेटी के घर में, उस दिन मौला अली ने फरमाया फिजा, जी मौला फिजा मेरे घर का सेहन साफ कर, फिजा कोई कंकर ना हो। बीवी फिजा कहती मैंने अली का सेहन साफ किया, अली की आवाज एक दीवारों के साथ कनाते लगा। फिजा कहती मैंने पर्दे की कनाते अली के घर की 4 दीवारी के अंदर लगाई। अली जमीन पे बैठे, 18 रमजान, अफ्तार हो चुकी है, सुबह अली की आखिरी अजान है। अब ये मंजर है 18 की उस शाम का। अली ने फरमाया फिजा कनाते लग गई, बादशाह लग गई। अली जमीन पे बैठे, फरमाया मेरे सारे बेटों को घर के अंदर बोला। अली का एक एक बेटा गर्दन झुका के अंदर आया। सेहन की हालत देखिए, बेटों के जिस्म कांपे। आज क्या होने लगा है, जंग भी कोई नहीं, अली ने क्यों घर में बुला लिया? 18 के 18 एक जैसे काते, खूबसूरत दाढ़ियां, अली की शक्ल वाले अली के बेटे। अली के पास आकर जी बाबा हो, फरमाया 9 इधर खड़े हो,
9 मेरे बेटे इधर खड़े हो, 9 अली के बेटे इधर खड़े हो गए, 9 अली के बेटे इधर खड़े हो गए। 18 के सर झुके हुए थे। बाबा हुक्म, बाबा क्यों बुलाया है? अली ने एक जैसे कद देखे बेटों के, अली ने एक एक बेटे का चेहरा देखा, अली ने सर से अमामा उतारा, अली ने बदन से अबा उतारी, अबा अली ने अपने हाथ में पकड़ी। तुझे अगले साल की 21 तक ये जुमला सोने दे तो फिर देखना। यूं अली बेटी के हुजरे में गए, हुजरे का पर्दा उठाया, अपनी अबा आलिया के सर पे दी, ज़ैनब का हाथ पकड़ा, ज़ैनब को हुजरे से बाहर लेके आए। 18 बेटों ने बहन को आते देखा, 18 के सर झुके, बीबी का बदन कांपना शुरू हुआ। रो के दी, बाबा क्यों बुलाया है? अली रो के, ज़ैनब मुझे भाइयों में चल के दिखा, मुझे भाइयों में चल के दिखा। वो बंदा शिया घर में पैदा हुआ ही नहीं है जिसे 21 रमजान की सुबह ये रवायत ने मातम नहीं करने दिया। अली की आवाज आई, ज़ैनब मुझे भाइयों में चल के दिखा। ज़ैनब रोती रोती जमीन में बैठ गई, रो के कही, बाबा मुझे बड़ी शर्म आती है, बाबा मुझे बड़ी शर्म आती है, बाबा मैं भाइयों के सामने कभी नहीं चली। मुसल्ले में बैठ के जाकरों ने फिर यहाँ पे इस वाक़े के बाद बंद लिखा था, अली रो के, तू घर में टुरना सीखिया कर, कोई आसिया ज़ैनब दौर है, वो दौर दे विच मैं कोई लगदा है देखो उम्मत नाने दी दौर है। ज़ैनब बाबे के कदमों में गिर गई, रो करी, मैं क्यों टुरना मेरा सोहना बाबा, मेरे वीर क्या है थोड़े, ओ बहन को टुरना क्यों पेवे जिंदा गाजी जैसा वीर। हुई मातम की तैयारी, बाबा मैं कैसे चलूंगी, बाबा मुझे चलना नहीं आता। अली की रो की आवाज आई, ज़ैनब हुंदे आरज़ी मान फिरावा दे, आवेंदियां हिन तन्हाइयां, आवेंदिन वक़्त शरीफा दे, नहीं रहंदियां ए शाइयां, जेड़ी औरतां ते को दरखास्तां लिख के तेरी करन ज़ियारत आइयां, ई औरतां तेनू पत्थर बरसा, तेरे नाल हुसन भर जाया। ज़ैनब भाइयों में चल, ज़ैनब भाइयों में चल, ज़ैनब भाइयों में चल। 1 मिनट के लिए मैं रुका हूं, अब तुम्हें अली की सुरबत का वास्ता इतना मातम करना कि जनाजा आ जाए। जब अली ने कहा ज़ैनब भाइयों के दरमियान चल, ज़ैनब की एक नजर हसन पे, एक नजर हुसैन पे, ज़ैनब एक कदम चलाती, हसन सूरा मुजम्मल पढ़ता, ज़ैनब दूसरा कदम चलाती, ज़ैनब का कदम चलता, हुसैन सूरह तार पढ़ता। ज़ैनब भाइयों में चलती चलती वहां आके रुक के खड़ी हो गई जहां अलमों वाला अब्बास खड़ा था। ज़ैनब ने अब्बास की कलाई में हाथ डाला, रोक कर दी, तू बता तेरी जिंदगी में भी मैं चलना है। अब्बास जमीन पे गिर गया, रो के कहता, बाबा अब्बास को कत्ल कर दे,